Assalamu alaikum students, this is Tari ma'am, and today on 4th September 2020 we will resume our previous lecture, and I am sure that all of you remember that what we have studied in our last lecture, that is about narration, direct or indirect speech, and we have stopped when I was teaching you the definition of direct speech, when I was telling you about the importance of speech marks. And now today, with the help of examples, I will show you that how we use speech marks during writing a direct speech. So as you can see, it's cloudy outside, so I'm sorry if there's problem with light, but I think it's pretty enough in my room. So let's start our lecture. So today we will start with the examples of direct speech, so that I can tell you that how we use the speech marks in the direct speech, or which we say reporting speech. So these are the examples. For example, पहली example हम ले लेते हैं, he or she, whatever, आपकी मर्जी, आप he लिखना चाहें he लिखिए, she लिखना चाहें she लिखिए. He or she said, I have a new book. Sadia said, I want to go to picnic. Sorry, I forgot to. These are the speech marks. Okay, third one. He said, I have finished my project. It is very good if we will learn as much examples as possible. So for the sake of introduction, as we don't need to go so deep inside, so if I can tell you a few examples, handful of examples, that is also enough, because you don't need to go into the details, and for the sake of introduction it is enough. So he or she said, I have a new book. As I told you in my previous lecture, that direct speech is that speech in which we use speakers' original words. Number one, सबसे important चीज़, original words. Number one क्या है? Original words. क्या है? मेन दो चीज़ें हैं जिस पे आपका डायरेक्ट स्पीच डिपेंड है. तो आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना, अगर आप ये याद रखोगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा. So as far as direct speech is concerned, we use number one, ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स. अब एग्जाम्पल की मदद से हम इस डेफिनेशन को करेक्ट प्रूव करेंगे. नंबर टू, वी यूज स्पीच मार्क्स. If you can see the definition I have used in my previous lecture, and you can also keep your books in front of you and just check the definition. So number one, original words of the speaker. Number two, speech marks. So he, she said, उसने कहा, I have a new book. ये ओरिजिनल वर्ड्स है स्पीकर के, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि उसने कहा. क्या कहा? मेरे पास नई बुक है. मतलब कि जिस शख्स ने ये कहा है उसके पास नई बुक है. ये उसके ओरिजिनल वर्ड्स है. ये आपके पास नई बुक नहीं है. मतलब आप अपनी फ्रेंड के बारे में कह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड सादिया है या कोई और स्टूडेंट है. सो आप ऐसे कहेंगे, सादिया ने कहा मेरे पास नई बुक है. आप ये डायरेक्ट स्पीच में अगर कह रहे हैं तो ये सादिया ने कहा है कि सादिया के पास नई बुक है. आपके पास नई बुक नहीं है, ऑल्दो यू आर यूजिंग आई, लेकिन ये जो आई है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये इस ही और शी को डिनोट कर रहा है. ये आपको डिनोट नहीं कर रहा है. अगर आप सादिया की बात करें, सादिया ने ऐसा कहा है, तो ये सादिया की नई बुक है, ये आपकी नई बुक नहीं है. ओरिजिनल वर्ड्स है स्पीकर के. मेरे पास नई बुक है. नंबर वन, आपका पहला पॉइंट प्रूव हो गया. नंबर टू, स्पीच मार्क्स, यूज ऑफ स्पीच मार्क्स. आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने इन स्पीच मार्क्स को यूज किया है. क्यों? स्पीच मार्क्स ही बताता है, हमें स्पीच मार्क्स से ही पता चलता है कि ये स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं
कि जो अब ये हमें बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसके ओरिजिनल, उसके अपने वर्ड्स हैं, उसने अपने वर्ड्स में किसी और की बात को बयान किया। आप कोटेशंस पढ़ते हैं, डिफरेंट राइटर्स की कोटेशन, डिफरेंट लोगों की कोटेशंस पढ़ते हैं ना, आपने नोटिस किया है दैट ऑल कोटेशंस आर इन इन्वर्टेड कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल एक कोटेशन मैं लिखती हूँ, टू थिंक टू मच इज अ डिजीज। ये एक जर्मन थिंकर, एक आई एम सॉरी रशियन थिंकर, फिलोसफर थे, किन्होंने दी है ये कोटेशन, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। आई एम सॉरी if I'll commit a mistake in any of the alphabet in this, because it is Russian names, especially surnames. इनके जो surnames होते हैं complicated होते हैं, तो कहीं अगर alphabet में मेरा कहीं गलती हो गया हो, यहाँ वहाँ हो गया हो, you can check that. सो ये बहुत ही फेमस फिलोसफर थिंकर रह चुके हैं रशिया के फ्योडोर, इट इज़ आर डियर स्टूडेंट्स, इट्स आर फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। सी हाँ, इसको प्रोनाउंस करने में भी यू नो, दोस्तोयेव्स्की, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कुछ ये कहा है, टू थिंक टू मच इज़ अ डिजीज़, ज़्यादा सोचना भी एक बीमारी है, अकॉर्डिंग टू देम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं, फ्योडोर साहब कह रहे हैं। तो हमने क्यों इसको स्पीच मार्क्स में रखा? ये कोटेशन है, आप भी कोटेशंस लिखते होंगे, आप भी स्पीच मार्क्स में रखते होंगे। क्यों? बिकॉज ये ओरिजिनली ये फ्योडोर साहब ने कहा है, टू थिंक टू मच, इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा सोचना एक बीमारी के बराबर है। अब अगर मैं ये स्पीच मार्क्स हटा दूँ, क्या ये कोटेशन रहेगी? ये कोटेशन नहीं रहेगी, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस बन जाएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, ये पता नहीं चलेगा किसने कहा है। अगर आप इसको स्पीच मार्क्स में रखते हैं, दैट मीन्स कि ये किसी के कहे गए हुए ओरिजिनल वर्ड्स हैं। गॉट इट? सो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। आपकी दोनों पॉइंट्स बराबर आ गए जो हमने डेफिनेशन में समझे। सादिया सेड आई वॉन्ट टू गो टू पिकनिक। सादिया पिकनिक जाना चाहती है। सादिया ने कहा मैं पिकनिक जाना चाहती हूँ। He said, I have finished my project. Okay, now we will turn this board, because as I told you that its area is not too much to adjust the whole lecture. Now comes the second and last type of narration, indirect speech. When we report what someone said without using the original words of the speaker and speech marks, we use indirect speech. देखिए, बिल्कुल वाइस वर्सा है, उल्टा है किसका? डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट स्पीच का, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट स्पीच में हम ओरिजिनल वर्ड्स यूज करते हैं और स्पीच मार्क्स भी यूज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में उसका उल्टा है। इनडायरेक्ट स्पीच में neither we use original words nor we use speech marks. Without to underline these words, ये मेरा मकसद है ताकि आप लोगों को समझ आए। ये मेन यही चीज़ है, दिस इज द क्रक्स, ओरिजिनल वर्ड्स एंड स्पीच मार्क्स। बस इसी का ये खेल सारा है। ओरिजिनल वर्ड्स लिख रहे हैं, स्पीच मार्क्स लगा रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच है, नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो गया। स्पीच मार्क्स का, ओरिजिनल वर्ड्स का कि कैसे लिखने, आई ही शी का ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है, स्पीच मार्क्स लगा दिया तो खत्म, सेंटेंस ही गलत। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच मार्क्स नहीं हटा देने हैं और ओरिजिनल वर्ड स्पीकर के नहीं यूज करने हैं, आपको अपने वर्ड यूज करने हैं। So when we report what someone said without using the original words, and of the speaker and without the speech marks, at that time we use indirect speech. Okay, it is also called reported speech. Reported.
Direct speech is reporting speech. Indirect speech can be also called reported speech. आपने रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में सुना ही होगा जर्नलिज्म में, जो आप तक न्यूज़ लाते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ दे रहे होते हैं, न्यूज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, माइक लिए हुए खड़े बता रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, आज फलानी जगह पे ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, पैंडेमिक का आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे होते हैं, कोरोना वायरस के बारे में एट्सेट्रा, आजकल यही चल रहा होता है ना न्यूज़ में. सो वो क्या है? हम क्यों उनको रिपोर्टर कहते हैं? हु इज़ अ रिपोर्टर? रिपोर्टर इज़ अ पर्सन हु रिपोर्ट्स समथिंग, मे बी अ न्यूज़, एनीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन, मीडिया एट्सेट्रा. तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने वर्ड्स में किसी और की बात बता रहे होते हैं. क्या वो ऐसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर वो क्या स्पीच मार्क्स आपको बताएंगे कि स्पीच मार्क्स लगा के बोलेंगे ऐसे ऐसे कहा? नो. तो यूजुअली क्या होता है, रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो उनकी कही हुई बात को, उनकी कही हुई इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में बयान करते हैं. यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो कोरोना के बारे में कोई एक बड़ा सा कोई स्टेप उठाने वाले हैं, या फलाना मिनिस्टर ने कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग एंड ब्ला 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 ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. तो ये उनकी रिपोर्ट देने का तरीका होता है. वो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि द हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस्ड एंड an important news and said, I am going to start a very concrete program regarding this pandemic, this coronavirus. No. He or she will report like this. Health Minister said that he is going to launch a concrete program regarding the regarding this coronavirus or any other kind of disease, whatever, or the development of construction of buildings, hospitals, medical centers in remote areas, etc. तो ये होता है रिपोर्ट, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए. Excuse me, my sore throats are, irritating. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल्स दिखाई, वी विल टर्न दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ताकि आपको इससे मैं कोई और एग्जाम्पल यूज़ नहीं करूँगी. जो हमने अभी डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल्स पढ़ी, हम उन्हीं को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. यू कैन रिकॉल, फॉर एग्जाम्पल, he she said that he or she had a new book. Got it? पीछे हमने क्या पढ़ा? अब मैं बोर्ड को, अगर मुझे टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वीडियो को भी रिवर्स कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं. हमने वहाँ डायरेक्ट में एग्जाम्पल दी, ही शी सेड, फिर स्पीच मार्क्स स्टार्ट हुए, ओरिजिनल वर्ड्स, आई हैव अ न्यू बुक, उसको हमने किस में चेंज किया, कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में. ही और शी सेड दैट ही हैड अ न्यू बुक. एज यू कैन सी, आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई से शी और ही में चेंज हो गया. सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आपने वहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया. सो पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, जो ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आती है? नंबर वन आपका कॉमा हट जाता है. जो यहाँ पे आप कॉमा लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, नंबर 1 कॉमा आपका हट गया. सो पॉइंट नंबर 1, आपने कॉमा हटा दिया, कॉमा हटा दिया. पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से हम कहाँ आ गए? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पे. सेकेंड पर्सन, आई से हम ही शी पे आ गए. ही और शी हैड अ न्यू बुक.
एंड अदर वर्ड्स, ये तो आपका सेम रहेगा जो मुद्दा है सेंटेंस का. हैड, as you can remember, I'm sure that we have used have. हैव हैड क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज भी, जिनको मॉडल्स हम कहते हैं, मॉडल वर्ब्स कहते हैं, जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देते हैं. तो हमने डायरेक्ट स्पीच में हमने हैड के बजाय हैव यूज किया था. अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में हैड यूज किया है हैव के बजाय, दैट मीन्स हम प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाते हैं. सो 3 चेंजेस आ गई अभी तक, 3 changes. Keep it in mind. Number 1, when we change a direct speech into an indirect speech, number 1, we remove the comma. Number 2, from first person pronoun we come to second person pronoun. And number 3, present tense gets changed into past tense. If we have used have, it gets changed into had. If we will use is, it will get changed into was. आया समझ? Got it? So number 2, Sadia said that she में change हो गया. She wanted to go to the picnic. Want को हमने change कर दिया, present tense want को हमने change कर दिया उसके past tense में, wanted में. आई examples बराबर. He said that he had finished his work. Again, removal of comma. said की जगह कॉमा हटा दिया और कॉमा के बदले क्या यूज किया हमने, that यूज कर लिया. पिछली एग्जाम्पल्स में भी that यूज कर लिया. लेट मी अंडरलाइन इट ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए. तो कॉमा के बदले हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज किया, that यूज किया. गॉट इट? that यूज किया. ओके. So she wanted to go to picnic and instead of present tense want, हमने past tense wanted लगा दिया, ed. He said that he had finished his work. Again comma हटा दिया, that लगा दिया, have की जगह had लगा दिया, finish की जगह finished लगा दिया. और आपका जो ये pronoun है, यहाँ पे his प्रोनाउन आ गया. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से माई के बजाय हमने हिज लगा दिया. पिछली डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, आई एम सॉरी. ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है. तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी फिनिश्ड ही रहेगा, उसमें भी फिनिश्ड ही रहेगा और आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी फिनिश्ड ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. तो फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड ही है. सो ये